Good morning. Yesterday we have discussed about the what is the drainage pattern and what is the drainage basin and what are the patterns of the drainage system. So we have to discuss about the patterns of the drainage system and major rivers, about the major rivers. Okay. Now, today we will discuss in a details about the major rivers in India, and suppose that I will take the example about the Ganga river. The Ganga river is flowing in which states? Yeah, where is the origin of the Ganga river? Where is the origin of Yamuna river? Where is the origin of Indus river? Where is the origin of Brahmaputra river? So these are the major rivers in India. Okay, when you will be see the map of India, so these are the major rivers and lakes. So some of the lakes has given to you. Just see the name of the lakes, and these are the mentioned in the red dot. Okay, the lakes are mentioned in the red dot. You just see the map and easily find out. And some of the, just say Wooler lakes, it is a very famous lake. Sambar Lake, it is a very famous lake. Okay, Chilka Lake in a Odisha, Sambar Lake in a Rajasthan, Buller Lake in a Jammu Kashmir. Okay, so these are the some very important lakes in India. You just write down in your copy. One side you will write down the name of the lake, and another side you can write down the name of the state. Okay, so this is your homework. You just find out, and it is not a big homework to you and not a big task for you. It is a very easy and simple homework. Okay, you can see the map and study the map and find out and write down in your copy. Okay, it is a one type of copyright from the books, isn't it? Because you are the ninth class children, it is not a difficult task for you. So now we will discuss about the Himalaya rivers. Yesterday I have told you and major difference between the Himalaya river and Peninsular river. So what are the differences of the Himalaya river, and what are the differences of Himalaya and Peninsular river? Sorry. Okay. So now today we will discuss in a details about the Himalaya river and Peninsular river, and which rivers are Himalaya rivers and which rivers are Peninsular river. Okay. So we will discuss about the rivers, isn't it? Now, Indus, Ganga, and Brahmaputra are major rivers originating in the Himalayas. These rivers are long and the many tributaries meet them. When a large rivers and her many tributaries meet, they form a pattern which is called a system. It means, जो मैंने आपको बताया कि हिमालय रिवर, दोज रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द हिमालय, या दोज रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, इट इज़ कॉल्ड हिमालय रिवर. And those rivers are originated from the peninsula, it means peninsular rivers, isn't it? So this is the common thing, you just remember it. Okay, when you will be write down the answer, yeah, what is the difference between Himalaya river and peninsular river, you can write down, this is common point and you can write it. Okay, isn't it? So जो these are the very major rivers in India, we can say that. And also so many tributaries मतलब मैंने आपको बताया था इन लास्ट टाइम, ये प्रीवियस क्लास, कि ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है उस रिवर में से बहुत सारी रिवर्स निकल के चली जाती हैं. जैसे आपने देखा कि एक मेन रिवर है गंगा रिवर, और गंगा रिवर्स में से तुंगभद्रा रिवर या अदर रिवर्स जो हैं वो क्या है, आप देखेंगे कि उसमें से निकल करके दूसरे रास्ते से मतलब फ्लो होती हैं. तो वो जो हैं उनकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. ओके, अगर हिंदी में बात करें तो सहायक नदी इनको बोला जाता है. सहायक मतलब सपोर्टिव, जो उनसे निकलती है इनको, दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी, इट इज़ अ जोग्राफिकल टर्म, इजंट इट? Now this is a major river, Indus या सिंधु river. Okay, तो रिवर्स इंडस इमर्जेस फ्रॉम ए नियर मानसरोवर इन तिब्बत. इनका जो ओरिजिन हुआ है, या इस रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है? मानसरोवर तिब्बत में, तिब्बत इन चाइना. ओके, यू नो, you I think you know about the Tibetan plateau, because it is a very famous plateau in the world. First, it flows to west and then the turn north toward no, sorry turns turns north westwards. There it's enter Leh district in the Ladakh Union Territory. It has formed many inaccessible gorges
Rivers Jaskers, Nubra, Shok, and Hunjas meet her. Satluj, Byas, Ravi, and Jhelum are her main tributaries. These five rivers are meet rivers Indus near a Midkot in Punjab. The combined flow of all these rivers ultimately flowing southwards and meet the Arabian Sea. These rivers flowing at a slower speed in the plains, about one third of its basin falls in the mountainous regions of जम्मू कश्मीर. इट मीन्स जो इंडस रिवर है, ओके, तो इंडस रिवर जो है उस जिसका वो है वो कहाँ से, मानसरोवर है तिब्बत, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, और जैसे ही फ्लो होते हुए वहाँ से निकलती है तो ये क्या है, लद्दाख. लद्दाख इट मीन्स नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी. ये वहाँ इंटर करती है इंडिया के अंदर लेह डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से होते हुए फ्लो होते हुए आती है. और इसकी कई बहुत सारी मतलब मेनली 5 मेजर रिवर्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम एंड सतलज, ब्यास, रावी, झेलम. दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर. ओके, तो ये जो रिवर हैं, ये 5 रिवर्स, ये कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान में एक जगह है मिथन कोट. मिथान कोट, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. ये यहाँ पे जा करके ये 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर में जा करके मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर. ओके, नाउ another one is I think some points as given to about the Indus river. You just read it. जैसे suppose that rivers Indus is 2900 kilometer long. It means this is the length of the river of Indus river. Just remember it. In 1916 treaty was signed with the Pakistan regarding the distribution of the water of in Sindh river. Okay, according India can be use only 20% of its water. Irrigation has been possible in Punjab, Haryana and southwestern part of the Rajasthan by the harnessing the water of Satluj, Ravi and Byas rivers. It means इसमें बताया है कि what is the length of 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है इंडस रिवर की. ओके, 1960 में एक ट्रीटी मतलब संधि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था इस इंडस रिवर के वाटर को लेकर के, और उसमें बताया गया था इस ट्रीटी में कि 20% जो वाटर है इंडस रिवर का उसका यूज़ कौन करेगा, इंडिया करेगा, बाकी 80% पाकिस्तान करेगा. ओके, तो दिस इज़ द कॉमन एंड दिस इज़ द कॉमन मेजर पॉइंट्स इन अबाउट द इंडस रिवर, इजंट इट. एंड नेक्स्ट वन इज़ गंगा रिवर सिस्टम. तो रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा emerging from the Gangotri are in the Himalaya merge with each others near देवप्रयाग, उत्तराखंड. ओके, गंगा leaves the mountainous terrain and entire plains are near हरिद्वार. इट मीन्स जो गंगा रिवर है जिसका जो वहाँ से एक जगह है गंगोत्री, वहाँ से इमरजेंस मतलब जिसको बोल सकते हैं अलकनंदा एंड भागीरथी. ओके, तो ये जा कर के जो है मतलब ये 2 रिवर्स हैं अलकनंदा एंड भागीरथी. ये 2 रिवर्स जो है गंगोत्री से फ्लो होती है, यानी कि इमरजेंस जो है गंगोत्री से हुआ है. ओके, और ये जो है देवप्रयाग में जा कर के मतलब उत्तराखंड में मिल जाती हैं. वहाँ पे ये तीनों नदियाँ जा कर के वहाँ उत्तराखंड में मिलती हैं, इजंट इट. तो यू जस्ट रिमेंबर इट. और जैसे ही मतलब ये पहले तो माउंटेन एरियाज़ में फ्लो होती हैं और धीरे धीरे क्या है जैसे ही बाहर निकलती हैं इट मीन्स प्लेन एरियाज़ में आती हैं. तो जो हरिद्वार, इट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस इन द हरिद्वार. वेयर इज़ हरिद्वार, यू नो वेरी वेल दैट आई थिंक. जस्ट फाइंड आउट दिस प्लेस इज वेयर इन विच स्टेट्स एंड इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस, you know. I hope so you know very well that because of you are the 9th class children. Okay, and many Himalaya rivers meets the Ganga along the Ghagra, Gandak and Koshi. यानी these are the tributaries of the Ganga river. ये जो rivers हैं ये क्या है मतलब हिमालय एरियाज़ में आकर के मतलब गंगा रिवर्स में मीट मतलब मिल जाती हैं. ओके, आर द मेजर रिवर्स यमुना इमर्जिंग फ्रॉम द यमुनोत्री. इट मीन्स जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री से इसका इमर्जेंस हुआ है मतलब ओरिजिन हुआ है. in Himalayas from to the right side of Ganga. Okay, it's merges with the Ganga are near Allahabad. तो इलाहाबाद में इसका मतलब ये मिलते हैं, मतलब इनका जो मर्ज है ये कहाँ जाके मिलती हैं, इलाहाबाद में. द सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन द नेपाल. इट मीन्स ये जो गंडक, घाघरा, कोसी रिवर्स हैं वो नेपाल से निकल के आती हैं. इट मीन्स नेपाल जो माउंटेन एरियाज से फ्लो होते हुए निकल के आती हैं और ये इलाहाबाद में आकर के मर्ज हो जाती हैं. कहाँ पे, इलाहाबाद में. किस रिवर में, गंगा रिवर्स में. ओके, ये रिमेंबर इट. ओके,
Hence, the northern plains experience and flood disasters every year. There is a heavy loss of the life and the property in some areas. At India has been able to attain prosperity in the agriculture through the fertile plains formed by the these river. It means जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यू नो वेरी वेल दैट, और एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द वाटर, या आप देख सकते हैं या रेन वाटर हो सकता है या रिवर वाटर हो सकता है। ओके, तो यू नो वेरी वेल दैट कि किस तरीके से मतलब जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो विदाउट वाटर के वी कैन नॉट एबल टू डू द एग्रीकल्चर वर्क, इजंट इट। तो क्या है ना कि जब रेनी सीजन में जनरली इन रिवर्स में वाटर की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड की कंडीशंस भी देखने को मिलती है, और जैसी सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं फ्लड जैसी कंडीशंस, तो उससे जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं, इट मीन जो जिस एरिया में एक बार बाढ़ आ जाए और उसके बाद उस एरिया में काफ़ी टाइम तक बाढ़ ना आए तो उस एरिया में क्या है, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। फ्लड प्लेन्स जिसको बोला जाता है, फ्लड मतलब बाढ़ वाले मैदान। ओके, तो फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और जो जो जहाँ पे वो अपने गार्जेस छोड़ के जाते हैं, इट मीन्स जो सॉइल जो होती है, जो रिवर्स के साथ, रिवर जब फ्लो होती हुई आती है माउंटेन एरिया से, तो उसके साथ जो सॉइल होती है, तो वो क्या है वहाँ पे अपने गार्जेस पटक, मतलब जो गार्जेस होते हैं या फिर मतलब मटेरियल होता है वो माउंटेन, मतलब आप देखे होंगे जब आप बाढ़ वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिट्टी जो सॉइल है, बाढ़ वाली मिट्टी अलग ही देखने को मिलेगी। इट मीन्स जो फ्लड वाली मिट्टी, जो फ्लड वाली सॉइल होती है वो अलग ही देखने को मिलेगी, और वो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है फॉर द एग्रीकल्चर, इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर एग्रीकल्चर। So that's why these are the things are we have to see in the reverse area, nearest the reverse area. Okay, isn't it? Now few rivers like a Chambal, Betwa originated in the peninsular plateau and the meet a Yamuna. Some rivers meet Ganga. These rivers originated in a semi-arid areas. These are the length of the flow in the shortly and her have a limited volume of a water. It means जो चंबल रिवर है और यमुना रिवर से, इट मीन्स जो चंबल रिवर है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुना रिवर। ओके, तो यमुना रिवर से मतलब देख सकते हैं आपके वहाँ, यस। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द चंबल रिवर। चंबल रिवर यमुना में जाके मिलती है ना, तो वही वी कैन से दैट दिस इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ओके, दिस इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। ओके, तो वी कैन से दैट के सन रिवर मीटेड गंगा, मतलब इस एक तरीके से यमुना जो रिवर है मतलब सन रिवर मीट गंगा मतलब बोला जाता है इसको। ओके, the combined flow of the rivers from north and south divided downstreams into the two branches are the branches entire the Bangladesh is known as Padma. Another branch is known as the Bhagirathi, Hooghly in a West Bengal. Finally, these two branches meet in the Bay of Bengal. ओके, तो इसकी जो आप देखेंगे कि ये जो गंगा रिवर है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं इसको, और इसको भागीरथी भी बोला जाता है। जो हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में जो इसकी एक ब्रांच होती है वो हुगली रिवर में, मतलब कोलकाता में, मतलब आप देखेंगे कि जैसे फ्लो होते हुए यहाँ से मानसरोवर से उत्तर प्रदेश, देन पटना, इट मीन्स पटना मतलब बिहार, देन उसके बाद ये सीधी बांग्लादेश निकल जाती है। ओके, बांग्लादेश कंट्री में यू विल सी द मैप, डायरेक्टली बांग्लादेश जाती है और उसमें से एक ब्रांच होती है वो कोलकाता, इट मीन्स बांग्लादेश जो है उसमें से मतलब जब जाती है रिवर तो उसमें से एक ब्रांच जो होती है वो वेस्ट बंगाल में होते हुए और अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, तो उसको हुगली रिवर कहा जाता है। ओके, और जो डायरेक्टली जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो उसको पद्मा नाम दिया जाता है, गंगा नहीं बोला जाता, इजंट इट? तो दिस फ्लो ऑफ द गंगा विच इज़ नॉन एज द पद्मा इन बांग्लादेश मर्ज देयर विद ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर द कंबाइंड फ्लोइंग कॉल्ड द मेघना। मतलब ये क्या है कि बांग्लादेश में जाकर के जब मिलती है तो बांग्लादेश के लोग यानी बांग्लादेश वाले जो होते हैं वो लोग इसको पद्मा बोलते हैं, और जब ये मर्ज होकर के मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर में जब मर्ज हो जाती है और मर्ज होकर के जब फ्लो होती है बांग्लादेश में तो इसको बोला जाता है मेघना। ओके, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज मोस्ट फर्टाइल डेल्टा एंड नॉन एज द सुंदरवन। जो कि ये आप देखेंगे कि जब अरेबिया बे ऑफ बंगाल में जब मिलते हैं तो उस एरिया में डेल्टा का मतलब फॉर्मेशन होता है, और ये बहुत फर्टाइल डेल्टा होता है, जो कि डेल्टा दो कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, बांग्लादेश एंड इंडिया। ओके, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, इजंट इट क्लियर?
तो जस्ट डोंट फॉरगेट इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी बिग डेल्टा इन द वर्ल्ड. ओके, next one is like to know about the Sundarban delta. We will discuss and some points has given to you, just read it. The delta region of the Ganga is called the Sundarban because of tree known as the Sundari growing in the large number here. It means जो trees है यहाँ पे, because of trees are known as the Sundari. It means जो सुंदरबन, इस एरिया का नाम जो सुंदरबन डेल्टा रखा गया था या सुंदरबन बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता था कि यहाँ पे जो है सुंदरी नाम की जो एक ट्रीज़ जो है, एक स्पीसीज़ है, द स्पीसीज़ ऑफ द ट्री, तो उस ट्री की एबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली यहाँ पे, इसीलिए उसको उस जगह को सुंदरबन के नाम से जाना जाने लगा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से. ओके, सुंदरबन डेल्टा इज़ मोर फेमस एज मैग्रो फॉरेस्ट, और यहाँ पे मैग्रो फॉरेस्ट की एबिलिटी भी देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे मैग्रो फॉरेस्ट भी है. Isn't it? Total length of the Ganga exceeds 2500 km. Ambala city works as a water divided between the Ganga and Indus river, यानी सिंधु river. It means what is the length of Ganga? 2500 km. Okay, so this is the length of Ganga river, 2500 km. Isn't it? Now next one is Ambala to Sundarban is about the 1800 km, but the slope is very gentle. Ambala it is at an altitude of 300 meter from sea level, while the Sundarban is at the sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 km. For there are many meanders in the rivers. It means इसके कुछ features about the rivers of Ganga. Okay, so you know very well that what is the length. This is important things. You must remember it about the length of Ganga and Sundarban, about the Sundarban. Okay, so these are the two rivers, Brahmaputra and Ganga river are meet in the Bangladesh, and they are called what is the name of, they are called Meghna. Okay, but the only Padma, the name of Padma is Ganga river. Okay, so don't merge it and don't forget it. Okay, now next one is Brahmaputra river system. So river Brahmaputra originated near Mansarovar in Tibet. Its source is the near the places of the origin of the river Sindhu and Satluj. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये मानसरोवर के वहाँ से ही इसका ओरिजिन हुआ है, और ये सोर्स ऑफ वाटर की एबिलिटी जो है इस रिवर्स में आप देखेंगे कि जहाँ से मानसरोवर, इट मीन सिंधु रिवर जहाँ ओरिजिन हुआ है सिंधु रिवर का, वहीं से इसी रिवर का ओरिजिन हुआ है. मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इन आउटसाइड इंडिया. ये क्या है कि ज़्यादातर ये इंडिया के बाहर ही फ्लो होती है. ओके, तो दिस रिवर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न पैरेलल्स टू द हिमालय माउंटेन्स system near Namcha Varma. It's a lakes, U-turn and entire Arunachal Pradesh. Here it is known as the Dehang. It means जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मानसरोवर होते हुए कुछ पार्ट इसका जो है इंडिया में फ्लो होता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ये जो है उसमें फ्लो होता है. किसमें? चाइना में, चीन में फ्लो होता है. और जो चीन में इसको अलग नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है क्या? सांगपो. इसको चीन में सांगपो नाम दिया जाता है. इट मीन्स इसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता है, इसको सांगपो बोला जाता है चाइना में. और जब जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश, इट मीन्स यू टर्न लेती है, यू टर्न मतलब यू आकार का यू टर्न होता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे ही ये यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश को देहांग कहा जाता है. क्या बोलते हैं? देहांग. ओके, दीज आर द सम डिफरेंट नेम्स in the Brahmaputra river, and some you know very well that what is the different name of Ganga, जैसे पद्मा. ओके, तो दीज आर द नेम्स ऑफ गंगा. पद्मा, गंगा को पद्मा भी बोलते हैं इन बांग्लादेश. वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में क्या बोला जाता है? सांगपो. एंड अरुणाचल प्रदेश जब वो इंडिया में आके फ्लो होती है, अरुणाचल प्रदेश इट इज़ अ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया. तो जब अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है तो उसको बोला जाता है क्या? देहांग. ओके, तो डोंट फॉरगेट इट. और ये हिमालय के जो है पैरेलल फ्लो होती है. और ये जो है नामचा वर्मा एक रेंज है जो कि पूर्वांचल रेंज को बोला जाता है. सॉरी, नामचा वर्मा इट इज़ एन हाईएस्ट पिक. ओके, इट इज़ अ हाईएस्ट पिक. नामचा वर्मा इट इज़ अ हाईएस्ट पिक इन अरुणाचल प्रदेश. डोंट फॉरगेट इट. और ये जो हाईएस्ट पिक है नामचा वर्मा, ये पूर्वांचल रेंज पे है. ओके,
ये जो जिसको बोलते हैं नामचा वर्मा जो है वो पूर्वांचल रेंज पे है, इस ये हाईएस्ट पिक है, इजंट इट। तो ये उसका यू टर्न लेकर के, मतलब उसके यू टर्न लेके उसको क्रॉस करते हुए आती है। ओके, तो ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर हैविंग अ मस्क्यूलाइन प्रोनाउन एंड इट्स अबाउट 2900 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है वो है 2900। ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज सांगपो इन अ तिब्बत एंड जमुना इन अ बांग्लादेश। इट मीन्स जो जब बांग्लादेश से बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता था, गंगा रिवर को पद्मा। ओके, जब दोनों मिलती थी तो दोनों रिवर्स को बोला जाता था क्या, दोनों जब रिवर्स मिलती थी उनको बोला जाता था मेघना, इजंट इट। और जब ये ब्रह्मपुत्र, जैसे गंगा रिवर को एक स्पेसिफाई मतलब अलग से गंगा रिवर को पद्मा बोला जाता था, वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग से नाम दिया जाता था, इसको बोलते थे जमुना। ओके, माजुली अन आइलैंड्स इन द ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट मीन्स जो माजुली है वो क्या है, रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। मतलब आइलैंड मतलब होता है जनरली जो आइलैंड हम देखते हैं वो ओशियंस और सी के अंदर आइलैंड्स देखते हैं। आइलैंड्स मतलब ए लैंड कवर अप ऑफ 4 साइडेड ऑफ वाटर, मतलब उसको चारों तरफ से वाटर से कवर अप हो, बीच में एक छोटा सा मतलब लैंड पार्ट हो, उसको आइलैंड्स कहा जाता है। ओके, तो ये जो है जनरली हम लोग जो आइलैंड्स होते हैं वो सी और ओशंस में देखने को मिलते हैं। बट जो रिवर आइलैंड्स भी होते हैं लेकिन इतने बड़े आइलैंड्स नहीं होते रिवर्स में, जो बट ब्रह्मपुत्र रिवर में ये बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसको माजुली आइलैंड्स बोला जाता है। ओके, इसका नाम है माजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है ये, इजंट इट clear? Now there is a less of the sedimentations in this river in the Tibet. In India is a river passing through pass through regions of the heavy rainfall. So further down there is a more of waters mass as well as the sediments. Many tributaries meets these rivers in Assam. Thus rivers Brahmaputra flow in a braided form ओके। तो एवरी ईयर्स इट मीन्स इसमें जो है तिब्बत, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तिब्बत में मोस्टली फ्लो होती है। इट मीन्स चाइना में जब ये वहाँ से गार्जेस जनरली जब निकल के आती है तो माउंटेन एरिया से गार्जेस होते हैं वहाँ पे, तो जिस जगह पे इसका फ्लो होता है उस जगह पे गार्जेस को देखने को मिलते हैं, इजंट इट। तो इसमें हैवी रेनफॉल भी होता है, जैसे क्योंकि मैं आपको बताया कि जो हिमालय रिवर्स होती हैं वो हैवी रेनफॉल होता है, मतलब जो अगर देखेंगे तो हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, इजंट इट क्लियर। every years there is a hug increasing in its water as its overflow during the rainy seasons. As a result, devastating flood after often occurs in Assam and Bangladesh. There is a contrast in this rivers compared to the other rivers of the northern India due to the heavy rain in Assam during the monsoons. There is a hug depositions. The increasing level of the sand in these rivers rises its a bed higher, show there are frequent changes in the courses of the river. It means जो आप देखेंगे इसमें कि जो जनरली मोस्ट ऑफ द जो है रिवर्स है वो क्या है, बाढ़ की कंडीशन या जिसको बोल सकते हैं फ्लड की कंडीशन उस जगह होती है। जैसे मान लीजिए माउंटेन एरिया से जो रिवर है उसने अपने गॉर्जेस मतलब गार्ज जो हैं वो आकर के कहीं एक जगह डिपॉजिट कर दिए और उस जगह उसने क्या है कि एक ऐसे द वाटर को मतलब रोक दिया। ओके, तो वाटर क्या है आगे नहीं बढ़ पा रहा। इट मीन्स जो स्टोर होगा वाटर, तो स्टोर जब होगा तो वहाँ पे एरिया फ्लड की कंडीशंस देखने को मिलती है। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड पेनिसुलर रिवर्स। ओके,